So, first of all, how will you define diet? The food which we eat is known as diet. Whatever food you intake, we do not consider the components of the food here. Whatever the food that you are eating, that is simply called diet. The food which we eat is known as diet. A balanced diet. A balanced diet is the diet which contains all the essential nutrients, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water in correct proportion. And the ratio between protein, fats and carbohydrates should be 1:1:4 respectively. Diet and balanced diet में difference है. Diet में we do not consider what the components. In balanced diet we consider the essential nutrients or components of the food and their proportion. ऐसा नहीं है कि आप फैट बहुत ज्यादा खाते हैं या प्रोटीन बहुत ज्यादा, नहीं. इतना फैट लेना है, 1 ग्राम अगर आपको प्रोटीन लेना है, 1 ग्राम फैट लेना है, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो 4 ग्राम्स होना चाहिए. सो दिस रेशियो शुड बी मेंटेन्ड, देन ओनली दैट डाइट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड डाइट. A balanced diet is the diet which contains all the essential nutrients. Example: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water in correct proportion. The ratio between proteins, fats and carbohydrates should be 1:1:4 respectively. Now we will see the factors that affects the diet. First is the occupation, state of health, climate, gender, pregnant or feeding mother. First comes is a growing child needs more protein minerals such as calcium and phosphorus than a grown up man. See here कि जो स्मॉल चाइल्ड है उसके जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं वो स्मॉल है एज कंपेयर टू ग्रोन अप मैन. तो इनकी इंटरनल एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो ऑर्गेन्स हैं, उनको ग्रो करना है. तो ग्रो करने के लिए ही रिक्वायर्स मोर प्रोटीन्स, क्योंकि मसल्स हैं वो किससे बनती है? प्रोटीन से. एंड मोर मिनरल्स एंड कैल्शियम, फॉस्फोरस से क्या बनता है? बोन्स बनती है. सो इसीलिए जो ग्रोन अप मैन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा उसको ग्रो नहीं करना, यहाँ पे उसकी ग्रोथ स्टॉप है. इसीलिए उसको ज़्यादा प्रोटीन या मिनरल्स या कैल्शियम की आवश्यकता नहीं है. उसको जस्ट बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए. इधर छोटे बच्चे को मेंटेन भी करना है, बॉडी को मेंटेन भी करना है और उसके इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स ग्रो भी करने हैं. तो इसीलिए उसको एज कंपेयर टू ग्रोन अप मैन he needs more protein, minerals, calcium and phosphorus. Then occupation. A person doing physical hard work needs more carbohydrates and fats in diet than a person doing mental hard work. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो लोग काम करते हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं, वो फिजिकली इनको मोर वर्क करना पड़ता है, वजन उठाना पड़ता है, वेट को उठाना पड़ता है. इधर से जो द पर्सन हु इज डूइंग मेंटल हार्ड वर्क, सी हियर कि जो अकाउंटेंट है उसको ऑफिस में बैठ के या कंप्यूटर में बैठ के काम करने वाले हैं, सो फिजिकली ही इज नॉट एक्टिव, सो ही नीड्स लेस एनर्जी एज कंपेयर टू द person who is doing physical hard work. So it also depends upon the occupation. Then has state of health. A person recovering from the illness needs more proteins, minerals and vitamins in their diet to repair damage caused by illness. जो इलनेस की वजह से जो बॉडी पार्ट्स आपका डैमेज हुआ है, तो न्यू टिश्यू फॉर्मेशन होनी है, न्यू सेल्स बनने हैं, तो कैसे बनेंगे?
प्रोटीन से बनेंगे. So more minerals and vitamins required as compared to the normal person. Then it also depends upon the climate. The diet also depends upon the climate in which we live. A person living in a hot climate needs more water and less fat as compared to the person living in cold climate. Then it also depends upon the gender. Males needs more calories as compared to the female due to the physiological needs of the body. क्यों भाई, क्या physiological needs है? देखिए, जो मेल एंड फीमेल है, मेल के जो बॉडी पार्ट्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बिगर आल्सो एज कंपेयर टू द फीमेल. तो इसीलिए जैसे हार्ट का डायमेंशन देखेंगे तो फीमेल का जो डायमेंशन है हार्ट का वो स्मॉल है एज कंपेयर टू द मैन. तो फिजियोलॉजिकल नीड है, अगर आपके बॉडी पार्ट्स बड़े हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनको मेंटेन करने के लिए. देन अ प्रेग्नेंट टू द फीडिंग मदर. A pregnant mother needs extra amount of carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. क्यों चाहिए? जब एक इंसान को रन करना है, उसके बॉडी पार्ट्स को रन करना है, तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो है ही, प्लस में अंदर जो एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से धीरे धीरे वो एक बच्चे में कन्वर्ट होता है, उसके इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ होती है 9 मंथ्स तक. तो उसको फूड चाहिए. वो फूड कहाँ से मिलेगा? वो मदर से मिलेगा. तो मदर कहाँ से लाएगी? तो इसीलिए मदर को बाहर से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ वी विल सी कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या इम्पोर्टेंसेस है? बैलेंस डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? क्या क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट, इट फाइट्स ऑफ डिजीज़. अगर आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपको डिजीज़ नहीं होगी. देन कंट्रोल्स बॉडी वेट. आपका बॉडी वेट कंट्रोल रहता है. हैव मोर एनर्जी. आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन हु इज़ नॉट टेकिंग बैलेंस डाइट. स्लीप बेटर, अच्छी नींद आती है. मोर ब्रेन पावर, ब्रेन अच्छा काम करता है. क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट इंक्रीजेस. अ पर्सन हु इज़ टेकिंग बैलेंस डाइट, हिज quality of life increases as compared to the normal person. Now you can able to answer the following questions. Define diet and balanced diet. Differentiate between diet and balanced diet. List the factors affecting balanced diet or list the factors affecting diet. What are the different functions of the balanced diet, or write down the importance of balanced diet. So ये जो आपका जो लेक्चर आपने अभी सुना और देखा, so उसमें से इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.